Hello friends. So now we will discuss question number 4 of GS Mains paper 2. So question number 4 is bring out the convergence, convergence and divergence between India and UK judicial system. Okay. So we need to bring out the convergence and divergence between India and UK uh, judicial system. So, as you know, this question, is not straightforward question because you need to compare the judicial system of India with the Britain, with the London, UK judicial system. So definitely you know the points about the Indian judicial system, details about the Indian judicial system, but you don't know the details about the judicial system of UK. So this question is tricky in that sense because you need to for comparison between India and UK need to know the points of judicial system about the judicial system of UK. So this can only be possible if you are regularly reading the newspapers because if you are regularly reading, definitely you will come across, and you had come across the points related to the judicial system of UK also. So if you're not reading it regularly, definitely you will miss out on this answer, definitely for sure. So now because now I'm taking the lecture and this is not your exam, so definitely you should know about the similarities and dissimilarities between India and UK judicial system. So we'll be studying the India and UK judicial system. As you know, the judicial system of India is more similar to the judicial system of US as compared to UK, but they have asked specifically about UK. So we will discuss this question. Okay, students. सो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जुडिशियल सिस्टम जो है मेनली क्या है कि यहाँ पे आप जानते हैं कि तीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम। तो हमारे जुडिशियल सिस्टम भी इक्वली पावरफुल है जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है, बट इन यूके द जुडिशियल सिस्टम is you can say subsidiary to the powers of the parliament, of the legislator, because in the UK the parliament is the sovereign. Here our constitution is sovereign. No agency is sovereign except the constitution. But because in UK you already know that the constitution is not written, no written, we have the written constitution there. Moreover, all the political and all the they are mainly governed by the unwritten constitution, the by the the rules, regulations and procedure, the unwritten conventions and the practice which is being followed from the past. So those conventions, here the written constitution is there, you can know written constitution is not there. So here the parliament is sovereign as per the practice. Parliament is sovereign. So in India, judicial and legislature are equal. So here, so you can say in UK, whatever laws have been made by the parliament, judiciary system, can subject those legislative acts or laws to the judicial scrutiny, or you can say judicial review is there. So judicial review is there in Indian judicial system. Judicial review. Okay? It is there in Indian judicial system. So Indian judiciary has the authority to even strike down a legislative law if it is ultra vires of the constitution. If it is unconstitutional, so it can strike down the law. But
in UK judicial review is not there. No judicial review is there. So judiciary cannot strike down the law which is being made by the parliament. That is for sure. ठीक है, तो पार्लियामेंट में यहाँ पे जो लॉ बनाया वो यहाँ पे स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता इन यूके. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो अभी हम डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम सिमिलैरिटीज के बारे में बात कर लेंगे. डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं है, वहां पे है जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, ये डिसिमिलैरिटी है जुडिशियल रिव्यू की, मतलब जुडिशियल स्क्रूटी नहीं हो सकती. और यहाँ पे कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है यूके में जिसके ऊपर जो कैन नॉट बी अमेंडेड, बट इंडिया में जुडिशियल बेसिक स्ट्रक्चर है विच कैन नॉट बी वायलेटेड एट एनी कॉस्ट. ठीक है, ये एक डिफरेंस है जुडिशियल सिस्टम. इसको इसके हिसाब से किसी भी एक्ट को लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है, और यहाँ पे कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे इट डजंट हैव एनी पावर टू स्ट्राइक डाउन एनी एक्ट विच इज बीइंग पास बाय द पार्लियामेंट इन यूके. दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूके जुडिशियल सिस्टम. ठीक है, उसके अलावा क्या डिफरेंस है इंडिया और यूके जुडिशियल सिस्टम के बीच में? आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के पास, हमारे पास एक स्पेशल लीव पिटीशन होती है, एसएलपी. एसएलपी आपको पता है कि कोई भी किसी भी एसएलपी में क्या करते हैं कि किसी भी एक्ट, कोई भी अथॉरिटी के खिलाफ या एनी, आप एसएलपी के माध्यम से किसी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के माध्यम से आप कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एसएलपी के माध्यम से उसको एक्सेप्ट करे ना करे. सो अगेंस्ट एनी, किसी भी कोर्ट के खिलाफ किसी भी अथॉरिटी एक्सेप्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस एसएलपी पावर कैन एक्सेप्ट एनी केस, कैन इशू रिट पिटिशंस, कैन टेक द केस, कैन इशू रिट पिटिशंस अगेंस्ट एनी अथॉरिटी इन इंडिया under any legislature, any authority, executive or any authority under SLP. ठीक है ना, SLP स्पेशल लीव पिटीशन के अंतर्गत वो किसी भी केस को एडमिट कर सकता है. ये हमारे इंडिया के पास है ये. तो इट गिव्स वाइड अमाउंट ऑफ पावर टू इंडियन जुडिशियल सिस्टम विच इज नॉट देयर इन यूके. यूके जुडिशरी के पास SLP नामक कोई भी चीज, ऐसी अथॉरिटी नहीं है. ठीक है ना. So under SLP, Supreme Court can, hear any case against any authority, any tribunal, any judicial authority, any administrative authority, any legislative authority under SLP, but that should be exercised in caution. कि इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस एंटरटेन कर सकता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन दी विजडम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, बट यूके में ऐसा एसएलपी नामक कोई भी चीज, कोई भी पिटीशन करने का तरीका नहीं होता. उसके अलावा क्या डिफरेंस है जुडिशियल? एक तो मैंने कहा जुडिशियल रिव्यू नहीं है. एक हमारे यहाँ होता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. इसको आपको पता है कि कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट वाला लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पार्टी फाइल कर सकती है ना, थर्ड पार्टी फाइल कर सकती है. मान लीजिए 2 केस, मान लीजिए है ना, जैसे मान लीजिए उसके खिलाफ, मान लीजिए मुसलमान के जो वो था डाइवोर्स लॉ, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था बाय मींस ऑफ PIL. तो कोई भी थर्ड पार्टी, जरूरी नहीं है कि वो से उस जिसके खिलाफ आप फाइल कर रहे हो पिटीशन, तो जरूरी जिस अथॉरिटी के खिलाफ या जिस मैटर को कंसीडर करते हुए, जरूरी नहीं है कि आप उस मैटर से इफेक्ट हो भी रहे हो, नहीं हो रहे हो. एनी थर्ड पार्टी कैन फाइल PIL इन सुप्रीम कोर्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि यूके जुडिशरी में ऐसा कोई PIL नहीं होता. तो PIL में थर्ड पार्टी फाइल कर सकते हैं, कोई भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस फाइल कर सकते हैं किसी मैटर के ऊपर. ठीक है, ये नहीं होता है. और हमारे यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है ना.
किसी भी बंदे को आप प्रिवेंट कर सकते हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट कर सकते हो और अंडर डिटेंशन रख सकते हो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, यानी कि विदाउट प्रोड्यूसिंग दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ कोर्ट इन 24 आवर्स। लेकिन यूके में क्या है कि यू कैन नॉट कन्फाइन एनी पर्सन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पे कोर्ट को ये पावर दी गई है कि यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है, इस वजह से कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना किसी भी पर्सन को आप डिटेंशन नहीं कर सकते बियॉन्ड 24 आवर्स। बट हेयर इन इंडियन जुडिशरी वी कैन कीप अ पर्सन अंडर डिटेंशन इवन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ 24 आवर्स बाय यूजिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। यहाँ पे कोर्ट के पास वो पावर है कि कोर्ट में आप कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना किसी को भी डिटेंशन नहीं कर सकते। तो ये पावर यूके जुडिशरी के पास है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस। ठीक है, और जजेस अपॉइंटमेंट जो है हमारा कोलिजियम सिस्टम के द्वारा है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय कोलिजियम सिस्टम, जिसमें आपके खुद के जजेस ही जिसके मेंबर होते हैं, है ना, अपॉइंटमेंट इंडिया में। और यूके में जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक होता है जो कि जजेस की अपॉइंटमेंट करता है। यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम होता है विद कंप्राइजेस ऑफ जजेस देमसेल्व्स हु अपॉइंट दी जजेस इन इंडिया, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। बट इन यूके जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अपॉइंट दी जजेस। एक ये डिफरेंस है 4 और 5। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हमारे यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, बट यूके में कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, वो अबोलिश कर दिया गया है। ठीक है ना, जिसके द्वारा कोर्ट अपनी कोई अगर उनकी अथॉरिटी को स्कैंडलाइज किया गया है या उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया, माना नहीं गया, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत वो पनिश कर सकता है। यहाँ पे नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यूके में। और हमारे यहाँ एक यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ना, यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड, यानी कि आप लोअर कोर्ट में जाते हो अपना केस लेके, फिर आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट में, एंड देन यू अपील टू सुप्रीम कोर्ट। तो इंटीग्रेटेड है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जगह आप अपील कर सकते हो अपने अपने केस को लेकर। ठीक है, इंटीग्रेटेड है। तो ये नहीं है कि भाई ये यूनियन लॉ, ये यूनियन और स्टेट दोनों लॉज के ऊपर है, यूनियन एंड स्टेट किसी के ऊपर, सबके ऊपर अप्लाई होती है ये हाई कोर्ट भी, यानी कि यूनिफाइड है एंड इंटीग्रेटेड है। तो you can appeal to you can file a case to lower court and appeal against the decision of lower court in high court and then to supreme court. But in UK there is no integration of court. हर रीजन का अपना कोर्ट है। ठीक है ना, हर रीजन का अपना कोर्ट है। हाँ, इन कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट जरूर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील यहाँ भी है वहां भी है, जो कि सिमिलैरिटी है। बट जो हाई कोर्ट यहाँ पे है, यहाँ पे अलग अलग रीजन के अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं। ये एक और डिफरेंस है, ये हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं। ये सब डिटेल इतनी तभी पता होंगी जब आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। मैंने भी ये सब मैटर इकट्ठा किया है, स्टडी किया है, मुझे भी नहीं पूरा डिफरेंस पता था। जुडिशियल रिव्यू वाला पॉइंट मुझे पता था, मैं आपको बताऊं, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला पॉइंट पता था, बाकी मुझे पॉइंट नहीं पता थे जो मैंने स्टडी किए हैं। एंड कन्वर्जेंस, यानी कि सिमिलैरिटी, एक तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है यहाँ पे भी और वहां पे भी। पहले वहां पे पार्लियामेंट था इन यूके, बट अभी सुप्रीम कोर्ट है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन यूके एंड इंडिया। ये सिमिलैरिटी है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। और क्या है, सुप्रीम, यहाँ पे क्या है, जुडिशरी भी इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां पे भी मतलब जुडिशरी ही इंटरप्रेट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को। यहाँ पे तो रिटन है बट वहां पे अनरिटन है कन्वेंशन के ऊपर। सो जुडिशरी इज इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन बोथ द कंट्रीज। सो दिस इज ऑल्सो सिमिलैरिटी, यहाँ पे दोनों में जुडिशरी इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को।
इसके अलावा और दोनों में, इंडिया एंड यूके में, दोनों में जुडिशरी के पास ये पावर है, यहां पे तो लेजिस्लेटिव एक्ट्स को भी स्ट्राइक डाउन कर सकता है एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स को भी। यहां पे केवल एग्जीक्यूटिव एक्ट्स को स्ट्राइक डाउन कर सकता है, लेजिस्लेटिव एक्ट्स को नहीं कर सकता। तो एग्जीक्यूटिव एक्ट पे सिमिलैरिटी है, नहीं कर सकता। और आफ्टर एक डिफरेंस मैं आपको बताना भूल गया कि आफ्टर मेनका गांधी केस के बाद हमारे यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो कर रहे हैं जुडिशरी, किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को जज करने के लिए। मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में समझाया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ प्लस लॉ इटसेल्फ इज जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। लेकिन यहां पे केवल ड्यू प्रोसेस ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यूके में फॉलो करते हैं। एक डिफरेंस आप लिख सकते थे, ठीक है। उसके अलावा दोनों कंट्रीज में ही जुडिशरी को सिक्योरिटी है टेन्योर की, दोनों ही कंट्री, जैसे हमारे यहाँ भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, दोनों पार्लियामेंट्स में पास होता है। दोनों पार्लियामेंट कह रहा हूँ, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक जुडिशरी को, यू कैन नॉट इम्पीच एनी जज। सिमिलर इज द केस विद यूके जुडिशरी। तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस वहाँ भी है, रिमूवल का प्रोसेस मतलब कहीं ना कहीं दोनों में सिमिलर है, यानी कि काफ़ी स्ट्रिंजेंट है एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जजेस को। उसके अलावा सिमिलैरिटी में कि जो भी जुडिशरी हमारे यहाँ जो भी जुडिशरी डिसीजन अनाउंस करती है तो कहीं ना कहीं एक कानून बन जाता है। सिमिलरली वहाँ पे जो कॉमन लॉ है, अनलेस अंटिल पार्लियामेंट जब तक उसके ऊपर कानून ना बना दे तब तक वहाँ भी जुडिशरी जो ऑर्डर प्रोनाउंस करती है वो भी कॉमन लॉ के नाम से जाना जाता है, कॉमन लॉ, ठीक है ना, कॉमन लॉ। यूके जुडिशरी में कॉमन लॉ, जो पार्लियामेंट, जो जुडिशरी ने जो लॉ, जो डिसीजन दिया है वो कानून बन जाता है दोनों जगह पे, अनलेस एंड अनटिल पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून ना बना दे कोई दूसरा। हमारे यहाँ कानून बना सकते हैं बट कानून इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, वहां कानून इज नॉट सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, है ना, ठीक है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन इंडिया एंड यूके जुडिशरी। अब मैं आपको इसमें बता दूं, यूएस जुडिशरी में जो जुडिशियल रिव्यू है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो कि मेनका गांधी केस में फॉलो होने लगा है। हमारे यहाँ पहले प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ होता था, प्रोसीजर मतलब कि लॉ ने जो बता दिया वही माना जाएगा, लॉ 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 के अंदर जो लिखा है, अब जो अंदर लिखा है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं होता कि वो सही है गलत है, जस्ट फेयर रीजनेबल है। सो प्रोसीजरल ग्राउंड्स ऑफ बीइंग रीजनेबल वो नहीं देखा जाता था, ओनली सब्सटेंशियल ग्राउंड्स ऑफ बीइंग लॉफुल देखा जाता था। अब प्रोसीजरल ग्राउंड्स ऑफ बीइंग रीजनेबल भी देखा जाने लगा है। तो सिमिलैरिटी जो वहाँ पे जुडिशरी को पावर दी गई है, अथॉरिटी दी गई है, हमारे यहाँ उतनी ही जुडिशरी को यहाँ पे पावर दी गई है, बट वहाँ पे एक्स्ट्रा पावर्स हैं जुडिशरी के बाद, यहाँ पे थोड़ी बैलेंस रखी गई है पावर इंडिया में। तो यहाँ पे पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है, वहाँ पे जुडिशरी ने जो बोल दिया पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून नहीं बना सकती, ये वहाँ पे एक्स्ट्रा पावर दी गई है जुडिशरी को, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस रखी गई है। सो दिस एंड्स माई लेक्चर है। उसके बाद मैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट होता हूँ। थैंक यू सो मच।